find the haloarene. First of all, we will discuss the haloalkane. In haloalkane, I informed you what is the definition. When one or more than one hydrogen of alkane displaced by halogen. When one or more than one hydrogen of alkane displaced by halogen, then the formed compound is called haloalkane. Haloalkane is IUPAC term and common term is alkyl halide. Here the word is given alkyl halide. That I found you कि alkyl halide बोले या haloalkane बोले, both means the same. Now in your syllabus, mostly monohalo is present, means only one halogen is present, one hydrogen is displaced. That's why in this definition monohalo word is there. Then after I told ki I am leaving the classification, and then I had discussed that the IUPAC nomenclature. In IUPAC nomenclature, I had discussed approx 7-8 examples, and I have given you okay, some information. Please see this. So now I am going to discuss the next. This part is the second part of haloalkane, that is classification of alkyl halide. Now listen, classification of alkyl halide और haloalkane दोनों एक ही चीज है. Classification of alkyl halide और haloalkane. So your voice is coming so much slow. Now it is clear. Now it is clear. Please tell me. Please tell me now my voice is clear. Hello. Okay. Thank you. And don't forget to give your attendance, everyone. Whose mic is on, please? Imroj. So now listen carefully. We are going to discuss the second part of this second topic of this part. I can say haloalkane ka second topic. Classification of haloalkane. So haloalkane is classified on different bases. First basis is here on the basis of position of halogen. On the basis of position of halogen, where the halogen is present. Halogen is present at which carbon? As like I informed you, कि in organic compound carbon is of 4 types. First degree carbon, second degree carbon, third degree carbon, fourth degree carbon. Quaternary. So here quaternary will not be used because one side is halogen is there. So primary, secondary and tertiary. You can see here primary haloalkane, secondary haloalkane, tertiary haloalkane. Now primary haloalkane, when halogen, just see the place of halogen, when halogen will be attached with first degree carbon. आपको केवल देखना है कि हाइलोजन जिस कार्बन से अटैच है दैट कार्बन इज फर्स्ट डिग्री कार्बन, सेकंड डिग्री या थर्ड डिग्री. यस, दैट डे आई इन्फॉर्म्ड यू कि फर्स्ट डिग्री किसको कहते हैं, सेकंड डिग्री किसको कहते हैं, थर्ड डिग्री किसको कहते हैं. फर्स्ट डिग्री का मतलब कार्बन अटैच विथ 1 कार्बन, सेकंड डिग्री मतलब कार्बन अटैच विथ 2 कार्बन, थर्ड डिग्री मतलब कार्बन अटैच विथ 3 कार्बन. सो व्हेन हाइलोजन, आई एम नॉट सेइंग कि उसकी नंबरिंग क्या है. दिस इज नॉट नंबरिंग, दिस इज प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी टाइप, नॉट नंबरिंग टाइप की फर्स्ट पोजीशन पे कि सेकंड पे, इससे मतलब नहीं है. टाइप में प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी
क्लासिफिकेशन जो है कि हैलोजन किस कार्बन से अटैच है, व्हाट इज द डिग्री ऑफ दैट कार्बन बाय विच और थ्रू विच halogen is directly attached, that is the degree of that halogen compound. So if halogen will be attached, you can see in first one halogen will be attached with first degree carbon, so it is प्राइमरी हेलो एल्केन। और प्राइमरी एल्किल हैलाइड, हेलो एल्केन भी कह सकता है और एल्किल हैलाइड भी कह सकता है, रिमेंबर दिस। नेक्स्ट, if halogen attach with second degree carbon, you can see here this carbon is attached with R and R. R means alkyl group. Alkyl group means carbon. So R लिखा हो या carbon लिखा हो, ठीक है। And below that you can see the example कि in this carbon is attached with halogen, means halogen attached with this carbon and this carbon is attached with two carbon. So it is second degree or secondary. Now next one is a tertiary or third degree. So in this halogen is attached with थर्ड डिग्री कार्बन। डिग्री आपको देखना है कार्बन का कि व्हाट इज द डिग्री ऑफ दैट कार्बन थ्रू विच हैलोजन इज अटैच, जिससे हैलोजन अटैच है उसकी डिग्री क्या है। इफ डिग्री इज फर्स्ट डिग्री देन दैट हैलोजन इज फर्स्ट डिग्री हैलोजन, प्लेस पोजीशन कहीं पर भी हो, नो मैटर। इफ डिग्री इज सेकेंड डिग्री then that is secondary haloalkane or secondary alkyl halide. And if degree of that carbon through which halogen is attached, that is third degree, then that is a tertiary or third degree, ठीक है, haloalkane. For example, अगर हम आपको कुछ एग्जांपल दे लाइक दिस, आई विल से कि 1 2 3 4 x, अब पूछे कि विच टाइप ऑफ हैलो, व्हाट इज द डिग्री ऑफ दिस हैलो एल्केन, दिस इज प्राइमरी एल्किल हैलाइड, सेकेंडरी एल्किल हैलाइड और टर्शियरी एल्किल हैलाइड। ये कौन से टाइप का है, प्राइमरी है कि सेकेंडरी है कि टर्शियरी है। सो आपको चेक करना है कि हैलोजन कहाँ पर है, हैलोजन जिस कार्बन से अटैच है दैट कार्बन इज ऑफ विच डिग्री, वो कार्बन किस डिग्री का है। और कार्बन की डिग्री पता करने के लिए आपको पता करना है कि दैट कार्बन इज डायरेक्टली अटैच विथ हाउ मेनी कार्बन, वो कार्बन डायरेक्टली कितने कार्बन से अटैच हो रहा है। सो दिस कार्बन इज अटैच हियर, हियर एंड हियर, थ्री कार्बन। इट मीन्स दिस कार्बन इज थर्ड डिग्री कार्बन, इसका मतलब ये कार्बन थर्ड डिग्री कार्बन है और हैलोजन इस कार्बन से अटैच है थर्ड डिग्री वाले से, सो इट इज थर्ड डिग्री एल्किल हैलाइड, ये थर्ड डिग्री एल्किल हैलाइड है। इफ in the same way, if I will write C, 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 C and X, अब हम पूछे कि what is the degree of which type of haloalkane is this or alkyl halide is प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी, तो आप यहाँ पे देखोगे एक थर्ड डिग्री कार्बन है, तो इससे हमसे नहीं मतलब है, हैलोजन कहाँ पर है एंड थ्रू विच टाइप ऑफ कार्बन इट इज अटैच, आपको बस उस कार्बन की डिग्री चेक करनी है जिसपे हैलोजन है, बाकी किसी की नहीं। तो हैलोजन अटैच है इस कार्बन से एंड दिस कार्बन इज अटैच विथ ओनली वन कार्बन, सो डिग्री ऑफ दिस कार्बन इज फर्स्ट डिग्री, और जिस कार्बन से हैलोजन अटैच है उसकी जो डिग्री होगी दैट इज द डिग्री ऑफ दैट कंपाउंड, दैट इज प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी, और फर्स्ट डिग्री सेकेंड डिग्री और थर्ड डिग्री। सो दिस इज प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी टाइप, रिमेंबर दिस। नाउ ये एक बेसिस हुआ क्लासिफिकेशन का, दिस इज द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन कि हैलोजन एल्किल हैलाइड इज प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी, दिस इज द फर्स्ट बेसिस। सेकेंड बेसिस हैलोजन जिस कार्बन से अटैच है वो कार्बन कितने बॉन्ड से अटैच है, इसके बेसिस पे है। तो इफ, ध्यान से समझिएगा, ये वाला पोर्शन हमको नहीं पढ़ना, इन्फॉर्म भी हो कि हम बेंजीन वाली बात अभी नहीं करेंगे। यहाँ पे देखिए दिया है वाइनिलिक, एलिलिक और, ठीक है, वाइनिलिक और एलिलिक क्या होता है इसको ध्यान समझिए, व्हाट इज एलिल हैलाइड एंड व्हाट इज वाइनिल हैलाइड। सो सी, लिसन केयरफुली, सी 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 एक्स, यहाँ पे आपको प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी फाइंड नहीं करना है, यू आर नॉट गोइंग टू आइडेंटिफाई प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी, ठीक है, हेलो एल्केन, यू आर गोइंग टू आइडेंटिफाई which type of alkyl halide is there, that is
एल्किल हैलाइड, एलिलिक हैलाइड और वाइनिलिक हैलाइड, तीन तरह का होता है हेलो एल्केन। एल्किल एक होता है एल्किल, प्लीज नोट डाउन दिस। एक होता है एल्किल हैलाइड, दूसरा होता है एलिल हैलाइड एंड तीसरा होता है वाइनिल। रिमेम्बर दीज थ्री वर्ड्स, दीज आर द कॉमन नेम। ये कॉमन नेम है क्योंकि एल्किल आपको दिख रहा है। सो नाउ सी, व्हेन हैलोजन इज अटैच, बस आपको हैलोजन, अब देखिए हैलोजन इज अटैच विथ द कार्बन एंड दैट कार्बन इज अगेन अटैच विथ वन बॉन्ड, यानी सिंगल बॉन्डेड कार्बन। सिंगल बॉन्डेड, आपको ये भी पता होगा ऑर्गेनिक में कि सिंगल बॉन्डेड कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है, डबल बॉन्डेड कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है एंड ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन इज हैविंग हाइब्रिडाइजेशन sp, that you know from your class 11 कि if the carbon is having only single bond then that is sp3 carbon. If carbon is having double bond, any one double bond, either left side or right side, then that is sp2. And if carbon is having any one side triple bond, then that is sp3. मतलब अगर सिंगल बॉन्ड कार्बन है तो sp3, डबल बॉन्ड कार्बन है sp2 और ट्रिपल बॉन्ड कार्बन है तो sp। यू रिमेम्बर दिस। तो आपके बुक में इस sp3 sp2 के बेसिस दिया है, मैं आपको बॉन्ड के बेसिस बता रहा हूँ। इफ हैलोजन इज अटैच विथ कार्बन and that carbon is attached with another carbon that is also single bonded, means halogen attached with sp3 carbon। ध्यान से समझिएगा, halogen attached with sp3 carbon क्योंकि single bonded carbon है, and that carbon attached with another sp3 carbon, वो कार्बन sp3 कार्बन से अटैच, उसके बाद चाहे जो हो उससे हमसे मतलब नहीं है। when halogen attach with sp3 carbon and that sp3 carbon and again attach with another sp3 carbon, हैलोजन sp3 कार्बन से अटैच है और वो कार्बन फिर से sp3 कार्बन से अटैच है, then that is called what, that is called, ठीक है, that is called एल्किल हैलाइड। इसको कहते हैं एल्किल हैलाइड। दिस इज कॉल्ड एल्किल हैलाइड, दिस इज कॉल्ड एल्किल हैलाइड, इसको कहते हैं एल्किल हैलाइड। रिमेम्बर दिस, हैलोजन अटैच विथ sp3 and that sp3 attach with another sp3, so this is alkyl halide। नेक्स्ट वन, ठीक है, नेक्स्ट वन एलिल। अब एलिल किसको कहते हैं, नाउ सी, हैलोजन अटैच विथ sp3 मतलब सिंगल बॉन्डेड कार्बन and that attach with double bonded carbon means sp2, halogen attach with sp3 and that sp3 attach with sp2, then this is called allyl, this is called allyl halide, alkyl halide, allyl halide, remember this। Now third one, if halogen will be attached with direct sp2 कार्बन यानी डबल बॉन्डेड कार्बन, ये तीन है, हैलोजन डायरेक्ट अटैच विथ sp2 कार्बन और डबल बॉन्डेड कार्बन, सॉरी sp3 इज नॉट देयर, sp2, देन इट इज कॉल्ड वाइनिल। देखिए दो तीन तरीके से हम आपको बता रहे हैं, हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे, बॉन्ड के बेसिस पे। इफ हैलोजन अटैच विथ sp2 कार्बन और डबल बॉन्डेड कार्बन डायरेक्टली, then that is called vinyl, that is called vinyl, ठीक है, vinyl halide। so again see this, फिर से एक बार देखिए, हैलोजन आपको केवल चेक करना है, हैलोजन इज अटैच विथ the sp3 carbon that is single bonded carbon and that carbon again attached with sp3 carbon, that carbon is again attached with sp3 carbon मतलब single bonded carbon। अब इसके बाद चाहे जो हो उससे हमसे मतलब नहीं है, then this is called alkyl, इसको कहते हैं alkyl। next, when halogen attach with sp3 मतलब single bonded and that
अटैच विथ sp2 मीन्स डबल बॉन्डेड, वो आगे किससे अटैच हो, sp2 से, then this is allyl. And when halogen attach with sp2 directly, means double bonded directly, then that is called vinyl. So if halogen attach with single bonded carbon and that carbon again attach with single bonded carbon, then that is alkyl. If halogen attach with sp3 and that attach with sp2 means single bonded then double bonded, then that is allyl. And if halogen attach with directly double bonded carbon or sp2 then that is vinyl. यहाँ डिग्री की बात नहीं हो रही है, रिमेम्बर दिस, डिग्री पूछे then check that कि halogen attached with the carbon then what is the degree of that carbon. And if alkyl, allyl, vinyl पूछे then that is on the basis of hybridization of carbon. Halogen attached with sp3, that attached with another sp3, so this is alkyl. Halogen attached with sp3, that is attached with sp2, then that is allyl. Halogen direct attached with sp2, so that is vinyl. So I'm giving you 30 seconds. Please tell me primary, second. If you have any doubt, then please unmute and ask. Primary, secondary, tertiary, एल्किल हैलाइड और हेलो एल्केन पहचानना समझ में आ रहा है, एंड एल्किल, एलिल और वाइनिल पहचानना समझ में आ रहा है या नहीं. इफ एनीवन हैव एनी डाउट यू कैन अनम्यूट. एल्किल, एलिल, वाइनिल ये अलग चीज है on different basis, and primary, secondary, tertiary is on different basis. So you have 30 seconds. Please tell me. I think no one is having any problem. Now listen. In your syllabus, only this is present, एल्किल. बाकी एलिल वाइनिल प्रेजेंट नहीं है. आपके सिलेबस में केवल एल्किल हैलाइड है, एलिल वाइनिल नहीं है. दैट इज ओनली फॉर आइडेंटिफिकेशन. केवल यही तक था कि आइडेंटिफाई करिए कौन एलिल है, कौन एल्किल है, कौन वाइनिल है. एंड दीज आर द कॉमन नेम. ये कॉमन नेम है, यू कैन सी हियर. कॉमन नेम लिखा है वाइनिल ब्रोमाइड एंड आईयूपीएससी नेम नीचे लिखा है ब्रोमो इथीन. Common name is allyl chloride. IUPAC name is 3-chloropropene 1-propene. ठीक है. So these are the common name, not the IUPAC name. Alkyl, allyl and vinyl. आपके सिलेबस में केवल alkyl है. तो now I'm going to discuss about the alkyl. ठीक है. So next आया, what is the nature of bonding present between carbon and halogen in haloalkane. haloalkane में कार्बन और हाइड्रोजन के बीच बॉन्ड की नेचर कैसी है. on the basis of nature of bond, as you know, bond are of, ठीक है, mainly two type. Overall so you can say three type, that is ionic bond, covalent bond and coordinate bond. But coordinate is in special case. So mainly two type, ionic and covalent. In covalent, that you know two types, polar and non-polar. So first of all, this information is clear to you that we are discussing the organic compound, and in organic compound all the bonds are covalent bond. ऑर्गेनिक कंपाउंड में जितने भी बॉन्ड होते हैं सारे कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं. ये आपको हमारे ख्याल से क्लियर होगा, सर ने बताया होगा. अगर नहीं बताया तो आप जान लीजिए. इन ऑर्गेनिक कंपाउंड ओनली कोवैलेंट बॉन्ड इज प्रेजेंट. कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड ले लेंगे कोवैलेंट बॉन्ड रहेगा. अब कोवैलेंट बॉन्ड इज ऑफ टू टाइप, दैट इज polar and non-polar. So question is asking कि what is the nature of CX bond. C means carbon, X means halogen. जो हेलो एल्केन में कार्बन हेलोजन के बीच बॉन्ड होता है उसका नेचर कैसा होता है. देन यू कैन सी कि देयर आर द बॉन्ड इज प्रेजेंट बिटवीन टू डिफरेंट एलिमेंट. बॉन्ड जो है दो अलग अलग एलिमेंट के बीच प्रेजेंट है. व्हेन बॉन्ड इज प्रेजेंट बिटवीन टू डिफरेंट एलिमेंट एंड दैट इज कॉल्ड पोलर. दैट इज कॉल्ड पोलर. So what is the nature of, ठीक है, CX bond. Then आप कहेंगे in haloalkane the CX bond
कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड इज अ पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। वो क्या होता है? पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होता है। ठीक है, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड मीन्स इट इज स्लाइटली आयनिक एंड मोर कोवेलेंट। Slightly ionic, partial positive, partial negative, and more covalent. That is called polar covalent bond. ठीक है, so Ragini, Riya, anyone please tell me voice and screen are clear or any problem is there? Or Piyush, anyone? Okay, okay, thank you. Yes, sir, clear. Okay, thank you. Sir, clear. So, thank you. Please see this. Please see this. ये क्वेश्चन आता है कि what is the nature of CX bond? तो आपको अभी हम नेचर बता रहे हैं कि CX बॉन्ड इज पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। CX बॉन्ड क्या होता है? पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होता है कार्बन हाइड्रोजन के बीच में। इन एनी हैलो एल्केन द बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन, पहले तो आप ये जान लीजिए कि इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ओनली कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म। ठीक है, सम एक्सेप्शनल केसेस आर देयर, हम उसे एक्सेप्शनल केस की बात कहीं नहीं करते। अगर हम कहते हैं कि ओनली और मेनली, तो इसका मतलब उस एक्सेप्शनल को हटा के कर रहे हैं, इसका मतलब आप ये मत समझिएगा कि वो है ही नहीं। ठीक है, सो एक्सेप्शनल केसेस हर जगह होते हैं। तो इफ आप कहें केवल कोवेलेंट होता है, कोई आके कहे अच्छा तो ये आयनिक नहीं होता है, तो मे बी एक्सेप्शनल केसेस आर देयर। ठीक है, बट कोवेलेंट इज अगेन टू टाइप, पोलर और नॉन पोलर। तो पोलर कोवेलेंट का मतलब हो गया कि दैट इज स्लाइटली आयनिक। एज यू कैन सी कि इस बॉन्ड में, इस बॉन्ड में, इस बॉन्ड में कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड बनता है तो वो नॉन पोलर होता है, क्योंकि बोथ हैव सेम मैग्नेटिक और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। बट यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन दो अलग अलग एलिमेंट है, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग है, किसी का इलेक्ट्रॉन किसी की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होगा। सो दैट्स वाई पार्शियल। तो पोलर का मतलब ही होता है स्लाइटली और पार्शियली आयनिक एंड मोस्टली कोवेलेंट। मतलब पोलर कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब ये होता है कि इट इज नॉट प्योर कोवेलेंट, इट इज partially ionic. That's why partially ionic is given there. So remember this कि what is, अगर क्वेश्चन आता है what type of bond is present or what is the nature of bond present in CX, ठीक है, of any alkyl halide between CX of any alkyl halide, then you will say the nature of bond is polar covalent bond, polar covalent bond. Now next, अब आपको लेके चल रहा है कि हैलोजन तो यहाँ पे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन चार हो सकते हैं। तो इन चारों के साथ जो कार्बन बॉन्ड बना रहा है, इसके जगह पे फ्लोरीन रहे, क्लोरीन रहे, ब्रोमीन रहे, आयोडीन रहे, तो व्हाट आर द डिफरेंस इन दिस बॉन्ड? क्या सारे हेलोजन के साथ बॉन्ड की प्रॉपर्टी सेम होती है, नेचर सेम होता है, या अलग अलग होता है? सो इट इज सेइंग कि बॉन्ड इन लेंथ मीन्स इफ यू विल सी अबाउट द बॉन्ड लेंथ, तो बॉन्ड लेंथ अगर हेलोजन की बात की है तो हेलोजन में तो सारे आ गए। तो फ्लोरीन की बॉन्ड लेंथ, फिर क्लोरीन की बॉन्ड लेंथ, फिर ब्रोमीन के साथ बॉन्ड लेंथ, और फिर आयोडीन के साथ बॉन्ड लेंथ। तो आपको पता है अप टू डाउन साइज इंक्रीज होती है, साइज इंक्रीज होगी तो डिस्टेंस बढ़ेगा, तो बॉन्ड लेंथ भी क्या होगी? बढ़ेगी। तो दैट्स व्हाई इट इज रिटन कि बॉन्ड लेंथ इज इंक्रीजेस। तो रिमेम्बर दिस। इस तरह से आपको दे सकता है CF, CL, CBr, CI, और कहेगा कि अरेंज दीज अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ। तो आपको पहले ये याद रखना है कि बॉन्ड लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज। जितना साइज बढ़ेगा बॉन्ड लेंथ उतनी बढ़ेगी। तो सबसे छोटी साइज फ्लोरीन की है और सबसे बड़ी साइज आयोडीन की है। सो CI बॉन्ड इज द हाईएस्ट और मैक्सिमम लेंथ बॉन्ड एंड CF इज द लीस्ट। तो C और F के बीच में जो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा उसकी लेंथ कम होगी, और C और I के बीच में जो होगी वो ज्यादा होगी, ड्यू टू इंक्रीजिंग इन साइज ऑफ हैलोजन। कार्बन की साइज नहीं बढ़ रही है, कार्बन की साइज सब में कार्बन ये तो सेम है। फ्लोरीन की साइज कम है, क्लोरीन की उससे बड़ी, ब्रोमीन की उससे बड़ी, आयोडीन की उससे बड़ी। तो जैसे जैसे एटम की साइज बढ़ती है बीच की बॉन्ड लेंथ बढ़ती है। नाउ नेक्स्ट, bond enthalpy. So bond enthalpy is also written, ठीक है, here. So bond enthalpy is up to down. What is happen? Up to down. ठीक है, अब देखिए इसमें थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा इसमें लिखने में थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया।
दिस इज द होल स्टेटमेंट. बॉन्ड एंथैल्पी डिक्रीजेस अप टू डाउन जाने पे बॉन्ड एंथैल्पी डिक्रीज होती है. एज यू नो, बॉन्ड एंथैल्पी इज, सबका बेसिक चीज याद रखिए, बॉन्ड एंथैल्पी इज व्हाट? बॉन्ड एंथैल्पी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड. किसी बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है, दैट इज कॉल्ड बॉन्ड एंथैल्पी. एंड एज यू नो कि जितना बॉन्ड बड़ा रहेगा उसको तोड़ने के लिए उतनी कम एनर्जी चाहिए, और जितना बॉन्ड छोटा रहेगा उसको तोड़ने के लिए उतनी ज्यादा एनर्जी चाहिए. या ऐसे अपने डेली लाइफ में देखें, इफ यू विल टेक अ स्टिक, तो स्टिक की अगर लंबाई छोटी, मतलब देयर इज वेरी शॉर्ट, तो आपको उसको तोड़ने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है. लेकिन स्टिक अगर बहुत लंबी है तो उसको तुरंत आप क्या करते हो? तोड़ देते हो. तो सेम इज हियर कि बॉन्ड लेंथ जितनी ज्यादा होगी बॉन्ड एंथैल्पी उतनी कम होगी. बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंथैल्पी. ये आपको सब क्लास 11 में बताएगा, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चैप्टर में. सो हियर बॉन्ड एंथैल्पी, सो यही करा है कि बॉन्ड एंथैल्पी डिक्रीज होती है क्योंकि बॉन्ड लेंथ बढ़ती है. अगर रीजन पूछेगा तो बिकॉज बॉन्ड लेंथ इज इंक्रीजेस. सबका रीजन बॉन्ड लेंथ आएगा. नाउ एज यू नो, जब एंथैल्पी कम होगी, बॉन्ड को कम एनर्जी चाहिए टूटने के लिए, तो बॉन्ड कैन बी ब्रेक इजिली. सो स्टेबिलिटी विल डिक्रीज. तो नेक्स्ट है स्टेबिलिटी. तो सी एफ सबसे ज्यादा स्टेबल होगा और सी आई सबसे कम स्टेबल होगा. मतलब सी आई आसानी से रिएक्ट कर लेगा और सी एफ आसानी से रिएक्ट नहीं करेगा. नेक्स्ट रिएक्टिविटी. तो रिएक्टिविटी स्टेबिलिटी का अपोजिट, रिएक्टिविटी विल इंक्रीज. अभी आपको बताया है कि सी आई आसानी से रिएक्ट करेगा, सी एफ रिएक्ट नहीं करेगा. सो सी आई इज more reactive and CF is less reactive. So there are four properties given of haloalkane. अगर कोई फ्लोरो एल्केन रहेगा तो उसकी बॉन्ड लेंथ सबसे कम रहेगी, और आयोडो एल्केन रहेगा तो उसकी बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा रहेगी. नेक्स्ट, अगर कोई फ्लोरो एल्केन रहेगा तो उसकी बॉन्ड एंथैल्पी सबसे कम रहेगी, नहीं सॉरी सबसे ज्यादा रहेगी. अगर कोई आयोडो एल्केन रहेगा तो बॉन्ड एंथैल्पी सबसे कम रहेगी क्योंकि अप टू डाउन डिक्रीज हो रही है. नेक्स्ट, इफ देयर इज एनी फ्लोरोएल्केन देन इट्स स्टेबिलिटी इज लेस. इसकी स्टेबिलिटी कम होगी. एंड आयोडोएल्केन स्टेबिलिटी, ठीक है, डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप. सो फ्लोरो की ज्यादा होगी और क्लोरो आयोडो की कम होगी स्टेबिलिटी. एंड रिएक्टिविटी, फ्लोरो की कम होगी, आयोडो की ज्यादा होगी. प्लीज कीप दिस माइंड कि आप ऊपर से नीचे जा रहे हो, कंफ्यूज मत होएगा फिर से आप. एंड डोंट राइट इन दिस वे, आप इस तरीके से नहीं लिखिएगा. हाउ यू विल राइट इन योर नोट्स, ध्यान समझिए. आप हेडिंग डालेंगे नेचर ऑफ सी एक्स बॉन्ड. इन दिस यू विल राइट द बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन दैट इज पोलर कोवेलेंट बॉन्ड. पोलर कोवेलेंट बॉन्ड which have following properties. First number bond length increases. बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस, तो आपको दिख रहा है डाउन द ग्रुप इंक्रीजेस. तो आप इसका पैटर्न लिखेंगे, सी एफ बॉन्ड सबसे कम, उससे ज्यादा सी सी एल, देन दैट इज सी बी आर, एंड दैट इज सी आई. नेक्स्ट बॉन्ड एंथैल्पी. तो सेकेंड नंबर, बॉन्ड एंथैल्पी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप. इतना आप लिखेंगे, बॉन्ड एंथैल्पी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप. सो बॉन्ड एंथैल्पी डिक्रीजेस, फिर पैटर्न बनाएंगे, सी एफ देन सी सी एल डिक्रीज हो रहा है, देन सी बी आर, देन डिक्रीज हो रहा है सी आई. नेक्स्ट स्टेबिलिटी. थर्ड नंबर स्टेबिलिटी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप. सब में डाउन द ग्रुप वर्ड ऐड कर देना है. स्टेबिलिटी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, देन अगेन डिक्रीजेस, तो फिर से सेम पैटर्न लिख देना है. नेक्स्ट लिखना है दैट इज रिएक्टिविटी इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप. फोर्थ नंबर रिएक्टिविटी इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप. सो आपको ये पैटर्न ऊपर वाला इंक्रीजेस वाला बॉन्ड लेंथ वाला लिख देना है. सो आपको हर एक लाइन में पैटर्न लिखना है. एंड देन आफ्टर द फिफ्थ वन विल बी डाइपोल मोमेंट. ठीक है, डाइपोल मोमेंट का पैटर्न इसमें लिखना है कि डाइपोल मोमेंट, एक्चुअल डाइपोल मोमेंट, देखिए हमारे हिसाब से एक्सपेक्टेड ये होना चाहिए लेकिन एक्चुअल ये है. ठीक है, एक्चुअल
ये है, तो इसको याद रखिएगा, डाइपोल मोमेंट ऑफ CF, या नोट में लिख दीजिएगा, डाइपोल मोमेंट ऑफ CF इज लेस देन CCl। CF का डाइपोल मोमेंट CCl से कम होता है, रिमेम्बर दिस, होना चाहिए। CF इज मोर देन CCl, बट इन रियल CF इज लेस देन CCl। रीजन क्या है कि Cl का इंटरेक्शन फोर्स ज्यादा होता है, F का रिपल्सन फोर्स ज्यादा होता है, तो वो सब उतना आपको नहीं बताना है, केवल आपको ये एक्सेप्शनल केस याद रखना है। सो दिस इज द नेचर ऑफ CX बॉन्ड। नाउ next is here, that is, now I think maybe the size is small, so you can please zoom in your mobile and see. Now we are going to discuss the preparation of haloalkane. अब हम जा रहे हैं preparation of haloalkane. Please anyone, if anyone have any problem in voice or screen, please zoom in. You are able, you can zoom in your screen. I can't zoom in, मैं zoom in नहीं कर सकता हूँ, but you can zoom in. So please see there. If anyone have any problem, then immediately tell me. Is there any problem, Manish? Yes. No, sir. No, Okay. sir. Thank you. If that alphabets will not be readable, please zoom in your screen. If I will zoom in, then I will be not able to give you this circle, or I can't use pen option. So please zoom in your screen and see. This is the next. देखिए अभी आपने क्या पढ़ा? In haloalkane, you have studied the IUPAC name first. Second, you have studied the classification, means type of haloalkane, primary, secondary, and alkyl, allyl, vinyl. Third, you have studied the nature of carbon halogen bond in haloalkane. Now we are going to discuss the preparation of haloalkane, and I inform you कि in your syllabus only alkyl halide is present, and only alkyl halide means mono. Only one halogen containing compound is present, monohalogen. एल्किल हैलाइड केवल आपके में है, एलिल वाइनिल नहीं है। सो इसमें से कोई मत पूछेगा कि वाइनिल बनाने के लिए, एलिल बनाने के, हालांकि वाइनिल बनाने के लिए मेथड इसमें दे दिया है, बट वी आर कंसीडरिंग मेनली एल्किल। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, हाउ मेनी वेज आर हियर टू प्रिपेयर हैलोएल्केन? हैलोएल्केन बनाने का मेथड कितना है? देन यू कैन सी हैलोएल्केन इज मेनली प्रिपेयर्ड बाय 3, from alcohol, from hydrocarbon and from halogen exchange method. हैलोएल्केन केवल 3 तरीके से बनाया जा सकता है, अल्कोहल से, अल्कोहल मतलब समझ गए होंगे जिसमें OH ग्रुप हो, हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन मींस एल्केन, एल्किन, एल्काइन, कोई भी हो, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, एंड halogen exchange. This is the third method. So first of all, how many methods are here to prepare haloalkane? So haloalkane can be prepared from 3 types of organic compound. haloalkane 3 तरह के ऑर्गेनिक कंपाउंड से बन सकता है। पहला अल्कोहल से बन सकता है, इफ यू हैव एनी अल्कोहल, अगर तुम्हारे पास कोई अल्कोहल है तो यू कैन प्रिपेयर द haloalkane फ्रॉम दैट, आप उससे haloalkane बना सकते हो। सेकेंड, हाइड्रोकार्बन, if you have any hydrocarbon, alkane, alkene or alkyne, then you can prepare the haloalkane. And third, halogen exchange method. पहले मेन समझिए, these 3 are basic one. अब इसके अंदर चलते हैं। alcohol, if you have any alcohol, ethanol, propanol, butanol, pentanol, hexanol, heptanol, any alcohol is there, you can convert that alcohol, ROH, एल्कोहल, इनटू हैलोएल्केन। आप उस एल्कोहल से हैलोएल्केन बना सकते हैं। कैसे? यू नीड द रिएक्शन, सो दैट रिएक्शंस आर रिटन हियर कि if that alcohol will be react, these are not the process, reactions. If alcohol will be react with PCl5, phosphorus pentachloride, PCl5, then it form the haloalkane.
if alcohol is react with PCl3 phosphorus trichloride, then it form the haloalkane. If alcohol is react with HX in presence of DiZnCl2, then it form the haloalkane. If alcohol will be react with SOCl2, ये सारा जो लिखा है by reaction with, so all the compound will be react with alcohol. React with SOCl2, then form the haloalkane. If alcohol is react with X2, means halogen X2, then it form haloalkane. And last, if alcohol will react with NaCl in presence of H2SO4, then it form the haloalkane. So please zoom in and read all these reactions by which we can prepare the haloalkane from alcohol. ये पांचों 6 रिएक्शन का नाम पढ़ लीजिए जिससे हम अल्कोहल को हेलोएल्केन में रिएक्ट कन्वर्ट कर सकते हैं. सो रिमेंबर दिस, कीप इन योर माइंड कि वी कैन प्रिपेयर द हेलोएल्केन फ्रॉम अल्कोहल. अगर हमारे पास अल्कोहल है और हमको कोई हेलोएल्केन की जरूरत है और हेलोएल्केन उस समय नहीं है, देन वी कैन कन्वर्ट दैट अल्कोहल इनटू हेलोएल्केन. सो फिर आएगा कि हाउ देन देयर आर 6 रिएक्शंस. इफ हमारे पास PCl5 है, उस अल्कोहल का PCl5 से रिएक्शन करा देंगे, हेलोएल्केन बन जाएगा. इफ PCl3 है तो PCl3 से करा देंगे. इफ PCl5 PCl3 नहीं है, HX है तो HX से करा देंगे. इफ HX भी नहीं है तो SOCl2 से करा देंगे. SOCl2 भी नहीं है तो X2 से करा देंगे. और X2 भी नहीं है देन H2SO4 से कराएंगे, मींस NaCl H2SO4 से कराएंगे. So there are 6 reactions, 6 other component which are react with alcohol to convert it into haloalkane. alcohol से haloalkane, ये फर्स्ट था. सेकंड, that is, अब बीच वाले को जूम इन कर लीजिए, that is हाइड्रोकार्बन. ठीक है, जूम इन दिस वन, इसको आप अपने में जूम इन कर लीजिए एंड सी फ्रॉम हाइड्रोकार्बन. तो हाइड्रोकार्बन में एल्केन, एल्कीन, एल्काइन. सी हम एल्केन से भी हेलोएल्केन बना सकते हैं, एल्कीन से भी एंड एल्काइन से भी. देखिए फर्स्ट लाइनिंग, देखिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये 3 मेन है. दीज 3 आर मेन, दैट इज फ्रॉम एल्कीन, फ्रॉम एल्केन, फ्रॉम एल्कीन, फ्रॉम एल्काइन. ठीक है, 3 है. फ्रॉम एल्केन, एल्केन से कौन से मेथड से बनाएंगे, नाम लिखा हुआ, बाय फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. इफ वी हैव एनी एल्केन, then we can convert it into haloalkane by free radical substitution reaction. free radical substitution reaction के थ्रू हम एल्केन से haloalkane बना सकते हैं. नेक्स्ट, if we have any alkene, अगर हमारे पास कोई एल्कीन है, then which reaction we will use, then it is written by addition reaction. किस रिएक्शन से बना सकते हैं, एडिशन रिएक्शन से. फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से नहीं, एडिशन रिएक्शन से. फ्री रेडिकल केवल एल्केन के लिए, एल्कीन के लिए एडिशन है. अब एडिशन भी 2 टाइप का है, यू कैन सी. इस पार्टिसिपेशन को मीन्स पार्ट्स को देखिए, यहाँ है और फिर नीचे आया है. बाय एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड, बाय एडिशन ऑफ हैलोजन. 2 चीजें ऐड करके एडिशन रिएक्शन मतलब ऐड करेंगे. क्या क्या ऐड कर सकते हैं, हाइड्रोजन हैलाइड ऐड कर सकते हैं एल्कीन में, और एल्कीन में हैलोजन ऐड कर सकते हैं. अभी क्यों नाम जानिए, फिर इसके बारे में हमको पढ़ना है. नाउ जो एडिशन ऑफ HX है, ये 2 तरीके से कर सकते हैं, दैट यू नो फ्रॉम क्लास 11, मार्कोनी-कॉप्स रूल एंड एंटी मार्कोनी-कॉप्स रूल. एंटी मार्कोनी-कॉप्स रूल का 2 नाम और आपने पढ़ा होगा, दैट इज Khares effect or peroxide effect. So now see, from hydrocarbon means we can prepare the haloalkane from alkane, alkene, alkyne, all 3. हम तीनों से alkane, alkene, alkyne तीनों से haloalkane बना सकते हैं. If we have alkane, अगर हमारे पास alkane है तो हम free radical substitution reaction करके बना सकते हैं. If we have the alkene, then we will follow the addition reaction. In addition reaction we can add the HX or X2. अगर हम HX ऐड करने जाएंगे तो we can use either Marconi और anti Marconi-Kopf rule. And from alkyne is also addition. alkyne में भी addition करा सकते हैं. Now third one, from halogen exchange. halogen exchange में 2 नाम दिया है, Finkelstein reaction और Schwarz reaction. So if you will see in this chart,
तो आपको 4 साइंटिस्ट का नाम मिल रहा है. यू कैन सी द नेम ऑफ 4 साइंटिस्ट, फिनक्लिस्टीन, स्वार्ट्ज, मार्कोनी, एंटी मार्कोनी. ठीक है. सो दोज केमिकल रिएक्शन विच आर ऑन द बेसिस ऑफ द नेम ऑफ देयर साइंटिस्ट, वो रिएक्शन जो साइंटिस्ट के नाम के बेसिस पे होते हैं, दैट आर कॉल्ड नेम रिएक्शन. ये वर्ड याद रखिएगा, नेम रिएक्शन. इन एवरी ईयर in your chemistry the two questions are coming which are name reaction, जो नेम रिएक्शन कहा जाता है. ठीक है. नेम रिएक्शन वो रिएक्शन होते हैं, आपके सामने चार्ट में लगभग 10 रिएक्शन 12 रिएक्शन कराने हैं, लेकिन इन 10-12 में से केवल 4 को नेम रिएक्शन कहा जाएगा, फिनक्लिस्टीन, स्वार्ट्ज, मार्कोनी एंड एंटी मार्कोनी कॉप्स रूल. ठीक है. दीज 4 आर नोन एज नेम रिएक्शन. आगे भी अभी और मिलेगा, यहाँ पे इस चार्ट में केवल 4 है. नेम रिएक्शन किसको कहते हैं? अगर कोई पूछेगा कि नेम रिएक्शन पढ़ना शुरू किया कि नहीं, नेम रिएक्शन का मतलब जानते हो कि नहीं? सो नेम रिएक्शन आर दोज केमिकल रिएक्शन which whose names are given on the basis of their scientists like Finkelstein, Schwartz, Marconi. एंड नेम रिएक्शन आपके पूरे सिलेबस में लगभग 30 या 40 है, 40 अप्रॉक्स है, और 40 में से कोई 2 नेम रिएक्शन आपके बोर्ड में आता है लिखने को. दैट इज उसका स्टेटमेंट और उसका रिएक्शन एग्जांपल. सो दैट वी विल डिस्कस.